हाय एवरीवन। तो अभी ये मेरा सेकंड वीडियो है एंड इसमें मेरा फर्स्ट इंडस्ट्री विज़िट होने वाला है कोयम्बतूर में, जो एक्वाटेक्स टेक्समो करके इंडस्ट्री है जो जहाँ पे हम विज़िट करने वाले हैं। तो हम सैटरडे को निकलेंगे जलगांव से, देन जाएंगे मुंबई एंड देन मुंबई से हमारी दोपहर की फ़्लाइट है कोयम्बतूर के लिए। एंड वहाँ जाने के बाद पहला दिन हमारा घूमना करना होगा पूरा, क्योंकि दोपहर में पहुँचेंगे तो इंडस्ट्री विज़िट हो नहीं सकता, उसके लिए पूरा एक दिन चाहिए। तो दोपहर में हम लोग जाएंगे घूमने फिरने एंड देन अगले दिन इंडस्ट्री विज़िट होगा। एंड देन इस वीडियो के एंड में मैं एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ही जो BIS ने इंटर्नशिप निकाली है, जो हमारे टाइम पे नहीं थी बट अभी निकली है, उसकी भी बात करें। धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज हैं अब क्या करें। ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। तो अभी हम पहुंच गए थे अपने होटल रूम पे 3 बजे एंड अभी हो गया है कुछ अराउंड 4:30। हमने चेंज वेंज कर लिया है। अभी हम जा रहे हैं ईशा फाउंडेशन आदि योगी स्टैचू देखने, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है एंड वो बहुत खूबसूरत है। तो लेट्स सी कैसा रहता है। एंड वो है अराउंड यहाँ से कुछ 30-35 किलोमीटर्स दूर, तो उसको जाने में 1 घंटा लगेगा। तो बीच में जो भी सीन्स होंगे हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे एंड जो लाइट शो होता है वहाँ पे मैं वो भी पूरा रिकॉर्ड करके इसमें डालूँगा। लगता है अब है जागे हम, फिक्रें जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो अब तो जो भी हो सो। जहाँ मैं ख्वाबों के परिंदे।
Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adiyogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation.
In this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have. Show me the way." Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. Seeing the splendor of this magnificent union, Ghanas, his constant companions, asked, "What about us?" Adiyogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures. Seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization.
This spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha. गाइस तो फाइनली 10:30 बजे जाके मैं अपने होटल पहुंचा। किस्मत इतनी ख़राब है, रास्ते में जिस बस में पहले तो बस नहीं मिल रही थी क्योंकि गवर्नमेंट बस थी तो पूरी ऐसे भर भर के भीड़ थी। तो हम आखिरी के बस में चढ़े एंड उसका आधे रास्ते में टायर पंचर। ड्राइवर ने बोला दूसरी बस तुम देख लो। दूसरी बस फिर जैसे तैसे हमने ढूंढी, उसमें बैठे। फिर हमने रास्ते में ही हमारा खाना ऑर्डर कर लिया था ज़ोमैटो से, जो रिसेप्शन पे हमने बोल दिया कलेक्ट कर ले। एंड हमने ऑर्डर किया है, फेमस गीतास किचन करके हैं यहाँ पे पीछे ही है, वहाँ से ऑर्डर किया है। अभी हमारा खाना आ गया है, अभी बस हम खाना खाएंगे देन रेस्ट करेंगे क्योंकि कल सुबह 9:30 बजे मुझे इंडस्ट्री विजिट पे पहुँचना। इसे क्या सुनाना, चल पड़े हैं जो हम, अब कैसा बहाना इसे है निभाना। ये सफर है नया, कैसे क्या हो गया, आगे क्या है आना। बेखबर मैं यहाँ, बेफिक्र है जहाँ, किसे क्या बताना कि दिल मेरा है बंजारा और मन मेरा ये जाने ना कि दिल थोड़ा आवारा और मन फिर भी ये माने ना। This was my experience on my first industry visit and it was an all the way paid expense trip by BIS। तो अभी हम प्रोसीजर की बात करते हैं कि BIS के इंटर्नशिप के लिए हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो बेसिकली BIS सिर्फ NIT एंड IITians को ही इंटर्नशिप ऑफर करता है। तो थ्रू योर कॉलेज प्लेसमेंट सेल एवरी ईयर देयर इज़ BIS इंटर्नशिप फॉर्म्स विच आर सर्कुलेटेड एंड यू कैन अप्लाई थ्रू दैट। इसके जो प्री रिक्विजिट्स है, बेसिकली लिमिटेड सीट्स होने के कारण कॉलेज में बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। तो बेसिकली बेस्ड ऑन CGPA एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एकेडमिक प्रोफाइल आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट किया जाता है एंड हर ब्रांच से टॉप 3 या टॉप 5 स्टूडेंट्स का ही प्रोफाइल फर्दर BIS को भेजा जाता है शॉर्टलिस्टिंग के लिए। तो एप्लीकेशंस जनरली ओपन हो जाते हैं नवंबर एंड दिसंबर में फॉर दी समर इंटर्नशिप्स। तो मेरा जो सिलेक्ट हुआ था वो मेन ऑफिस के लिए सिलेक्ट हुआ था। इसमें 2 टाइप्स के इंटर्नशिप होते हैं, मेन ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस। तो पहले हम मेन ऑफिस की बात करते हैं। तो यू विल बी ज्वाइनिंग अराउंड मिड ऑफ मे। You will be given the address of the main office of the BIS in Delhi where trainings and orientations take place.
तो ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन कंप्लीट करने के बाद फ्रॉम द नेक्स्ट डे यू विल बी जॉइनिंग इन द वर्किंग ऑफिस, जहाँ पे डेली वर्क्स होते हैं, टेक्निकल डेटास पे वर्क होता है। तो वहाँ पे बहुत से डिफरेंट ब्रांच वाइज ऑफिस थे। मेरा मेन मैकेनिकल में ऑफिस था, मेरे फ्रेंड्स का ऑटोमोटिव सेक्शंस में ऑफिस था। तो मैकेनिकल ऑफिस में जाने के बाद हमें हमारे मैनेजर असाइन किए गए थे, जिन्होंने हमसे ही पूछा था कि व्हाट्स योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने हमारे अकॉर्डिंगली एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताए थे। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ IS स्टैंडर्ड्स असाइन कर दिए गए थे विच वर इन दी डायर नीड ऑफ रिवाइजमेंट्स, क्योंकि हर 5 साल से 6 साल में कुछ हर स्टैंडर्ड्स रिवाइज होते हैं बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एरिया वाइज चेंजेस, नीड चेंजेस। तो इसके कारण कुछ चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट डे पहले 7 से 8 दिन हमें ऑफिस से काम करना पड़ता है। तो इसका शेड्यूल क्या होता है मैं वो बताता हूँ। हम लोग सुबह 9 to 9:15 के अक्रॉस ऑफिस पहुँच जाते थे। 10:30 के अक्रॉस यू विल बी सर्व्ड योर ब्रेकफास्ट एट योर वर्क प्लेस। उसके बाद दोपहर का लंच होता था जो ऑफिस की तरफ से ही पेड था। एंड शाम में दोपहर में चाय आती थी उसके बाद। एंड देन शाम में वी यूज्ड टू लीव अराउंड 5:30 फॉर आवर हॉस्टल्स एंड वेयर वी स्टेइंग। तो 7 से 8 दिन ये प्रोसेस होने के बाद हम लोग वी वर अलाउड टू वर्क फ्रॉम होम। तो एवरीवन लेफ्ट फॉर देयर होम्स। घर पे जाने के बाद हमें इंडस्ट्री विजिट्स का प्लान करना होता है। तो इंडस्ट्री विजिट्स के लिए हमें बेसिकली 2 इंडस्ट्री विजिट, 1 लैब विजिट, दैट्स नेसेसरी। लैब विजिट इज़ नेसेसरी बिकॉज उसके बिना रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकते हो। तो 2 इंडस्ट्री विजिट शेड्यूल की थी। हमने मल्टीपल कंपनीज़ को अप्रोच किया था जहाँ पे वी वर इंटरेस्टेड टू विजिट देम। एंड उनसे कंफर्मेशन आने के बाद हमने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए थे BIS को, जो ट्रैवल से रिलेटेड होते हैं। सो इफ़ यू वांट टू ट्रैवल बाय फ्लाइट, मेक श्योर यू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म्स 10 to 15 days प्रायर टू योर विजिट्स, बिकॉज फ्लाइट के टिकट्स रीइंबर्स नहीं होते, दे नीड टू बी बुक बाय द BIS। तो फ्लाइट के टिकट्स BIS के थ्रू ही बुक करवाने हैं। होटल यू कैन सिलेक्ट एनी होटल इन द प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 5,000 and that will be reimbursed to you later, so you need to pay first. And if you are traveling by train or bus, those tickets also need to be booked by you and they will be reimbursed to you later. तो फूड एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सब हमें खुद ही करने पड़ते हैं एक्सेप्ट फॉर दी फ्लाइट एक्सपेंसेस, क्योंकि वो रिइम्बर्स नहीं होते। तो एक बार तुम्हारे एप्लीकेशन फॉर्म का अप्रूवल आने के बाद ही तुम ये सब एक्सपेंसेस कर सकते हो। विदाउट द अप्रूवल फ्रॉम योर मैनेजर फॉर द ट्रैवल एक्सपेंसेस यू हैव सबमिटेड प्रायर, इट इज़ अ रफ एस्टिमेट कि क्या क्या तुम्हारा होगा एक्सपेंसेस। तो वो होने के बाद जब तुम्हें अप्रूवल आ जाता है तुम विज़िट के लिए जाते हो, विज़िट कंप्लीट करके आते हो। ऐसे 3 विज़िट्स 2 सेम सिटी में भी हो सकते हैं, तो यू कैन डू इट एक साथ ही तीनों विज़िट कर सकते हो सेम सिटीज़ में। लाइक मेरा जो 2nd विज़िट था, 2nd इंडस्ट्री विजिट और 3rd लैब विजिट, वो सेम सिटी में था, पुणे। तो इट वाज अ 4-day ट्रिप जहाँ पे मैंने पूरा हॉल्ट लेके पूरा कंप्लीट किया था एंड आई रिटर्न। तो ये होने के बाद एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप यू हैव टू सबमिट अ PPT, जो तुम्हें तुम्हारे ED को दिखाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट हेड, जो अप्रूवल देगा कि या यू हैव वर्कड एफिशिएंटली एंड प्रॉपरली। वो होने के बाद तुम्हें रिपोर्ट सबमिट करनी होगी विच शुड हाईलाइट द चेंजेस दैट यू आर सजेस्टिंग एंड व्हाई दे आर सजेस्टेड, प्रायर रिसर्च ऑन दैट। तो ये सब होने के बाद तुम्हारे रिपोर्ट सबमिट होने के बाद तुम्हारा मंथली स्टाइपेंड होता है अराउंड 20,000। तो 2 महीने के इंटर्नशिप के अराउंड 20,000 हर मंथ वो हो जाते हैं। तो 40,000 वो हो गए। एंड जो एक्सपेंसेस होते हैं फॉर द ट्रिप इंडस्ट्री विजिट्स, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट्स एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्टे इन अ नाइस होटल, तो इट विल बी अराउंड 20,000 to 25,000 पर ट्रिप बेस्ड ऑन योर एक्सपेंसेस एंड तुम कहाँ तक ट्रैवल कर रहे हो। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। वर्कलोड बिल्कुल नहीं होता है। यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस इंटर्नशिप। एंड जो तुम्हें जब तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें प्रॉपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली फील आएगी, कुछ काम नहीं, एकदम चिल रहोगे। तो ट्राई गोइंग फॉर दिस इंटर्नशिप। एंड अगर तुम मैकेनिकल से हो और भी अच्छा, क्योंकि मैकेनिकल के उधर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स डिफरेंट है। सिमिलरली फॉर सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल ब्रांचेस, सभी ब्रांचेस में स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड ही है IS। तो फिर सब ब्रांचेस के लिए इंटर्नशिप ओपन रहती है। तो ये तो हो गया पूरा मेन ऑफिस के इंटर्नशिप का पूरा वर्कलोड एंड एवरीथिंग। अब हम बात करते हैं ब्रांच ऑफिस में क्या क्या होता है। तो ब्रांच ऑफिस में बेसिकली हमें ब्रांच ऑफिसेस उनको अलॉट होते हैं जिनका 2nd या 3rd राउंड में शॉर्ट लिस्टिंग में आ जाता है ना। तो तुम्हें बेसिकली एक ब्रांच ऑफिस अलॉट किया जाएगा इन XYZ सिटी।
जहाँ पे BIS के ऑफिस सेटअप है। वहाँ पे जाने के बाद तुम्हारा पहला वीक ओरिएंटेशन एंड टास्क असाइंस होंगे एंड वहाँ पे हर वीक वाइज एक टास्क लिस्ट क्रिएटेड होती है जो तुम्हें कंप्लीट करनी होती है। तो सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में बेसिकली तुम किसी इंस्पेक्शन ऑफिसर्स के साथ इंस्पेक्शन साइट्स पे जाओगे एंड थर्ड वीक से तुम्हें हर वीक एटलीस्ट 2 कंपनीज तो विजिट करनी ही पड़ती है। वहाँ पे कंपनीज़ का पूरा डेटा वो प्रोवाइड करते हैं कि कौन सी कंपनीज़ में तुम्हें विज़िट करना है। वो जो भी पूरा अरेंजमेंट होता है उसकी पूरी जो सेटिंग्स होती है वो करवा के देते हैं एंड वो जो उसका जो भी ट्रैवल एक्सपेंसेस होता है वो पूरा पेड होता है, वो रीइंबर्स हो जाता है या फिर वही अरेंज करवा देते हैं। एंड उधर भी सेम स्टाइपेंड है जो 20,000 पर मंथ है, बस वहाँ पे तुम्हें ऐसे इंडस्ट्रियल विजिट प्रॉपर आउट ऑफ टाउन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस प्रेफरेंसेस वैसे नहीं मिलता है। तो ट्राई कि तुम्हारा फर्स्ट टाउन में ही शॉर्टलिस्ट हो जाए एंड उसके लिए तुम्हें एक अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड रखना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ब्रांच ऑफिस एंड मेन ऑफिस के इंटर्नशिप्स का। इसके अलावा ब्रांच ऑफिस इज़ बेसिकली आई वुड प्रेफर कि मेन ऑफिस ही करो, बिकॉज वहाँ पे तुम्हें पूरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला फील आएगा एंड तुम घूमने फिरने भी जा पाओगे। एंड ब्रांच ऑफिस में तुम वही सिटी में तुम्हें 2 महीने तक रहना पड़ेगा, तो मेन ऑफिस इज़ डेफिनेटली बेटर। तो ये था BIS के इंटर्नशिप का पूरा प्रोसेस एंड प्रोसीजर एंड हाउ यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है जिसमें जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स इसको अप्लाई करते वक्त लगते हैं यू कैन, वो मैंने अपने प्रोफाइल के बेसिस पे फिल करके जो सबमिट किए थे उसका लिंक में ऐड कर दिया है, तो यू कैन हैव अ ग्रास्प ऑफ थिंग्स। तो आई डू होप दैट यू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप एंड गेट सिलेक्टेड। तो इसके बाद माय सेकेंड इंटर्नशिप जो मैंने सिक्योर की थी दैट वाज इन JP Morgan Chase and Company, and I'm also going to share a video of how you can start your preparations if you are interested in that financial sector internships. So do follow and subscribe to stay tuned on the upcoming videos, because अभी बहुत सी कंपनी के वीडियोस डालने वाला हूँ कि how you can apply for that company and how you can prepare for that specific companies. And if you have any questions you can follow me on my LinkedIn profile, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। थैंक यू।